नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदू है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और की मदद से आज के पहले घातक घोट से दूर हूँ। हाय आप चंदू। सबका स्वागत है। हाय। हाय ऑल। आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप थाने की अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में। यहाँ पे हम ट्रेडिशन पर चर्चा कर रहे हैं। आज आज का ट्रेडिशन है ट्रेडिशन 8। तो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। ट्रेडिशन 8। Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers. Alcoholics Anonymous will never have a professional class. We have gained some understanding of the ancient word. Freely ye have received, freely give. We have discovered that at the point of professionalism, money and spirituality do not mix. Almost no recovery from alcoholism has ever been brought about by the world's best professionals, whether medical or religious. We do not decree professionalism in other fields, but we accept the sober fact that it does not work for us. Every time we have tried to professionalize our 12th step, the result has been exactly the same. Our single purpose has been defeated. Alcoholics simply will not listen to a paid 12-stepper. Almost from the beginning, we have been positive that face-to-face work with alcoholic who suffers could be based only on the desire to help and be helped. When an A talks for money, I guess किसी का माइक खुला हुआ है. Sorry. When an A talks for money, whether at a meeting or to a single newcomer, it can have very bad effect on him too. The money motive compromises him and everything he says and does for his prospect. This has always been so obvious that only a very few A's have ever worked the 12th step for a fee. Despite this certainty, it is nevertheless true that few subjects have been the cause of more contention within our fellowship than professionalism. Caretakers who swept floors, cooks who fed hamburgers, secretaries in offices, authors writing books, all these have been because they were, as their critics angrily remarked, making money out of AA, ignoring the fact that these labors were not 12-step jobs at all. The critics attacked as AA professionals these workers of ours who were often doing thankless tasks that no one else could or would do. Even greater furores were provoked when AA members began to run rest homes and farms for alcoholics, when some hired out to corporations as personal men in charge of the alcoholic problem in industry, when some became nurses on alcoholic wards, when others entered the field of alcohol education. In all these instances and more, it was claimed that A knowledge and experience were being sold for money, hence these people too were professionals. At last, however, a plain line of cleavage would be seen between professionalism and non-professionalism. When we had agreed that 12th step couldn't be sold for money, we had been wise. But when we had declared that our fellowship couldn't hire service workers, nor could any AA member carry our knowledge into other fields, we were taking the counsel of fear which today has been largely dispelled in the light of experience. Over to you, Lucky ji. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। Hi, Lucky. ग्रेस ऑफ गॉड सोबर टुडे रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ
और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों। ट्रेडिशन 8, जहाँ पे हम स्पेशल वर्कर्स की बात करते हैं, उसकी थोड़ी सी पार्श्वभूमि देते हुए बिल कहता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कभी भी कोई पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल वर्ग नहीं होगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस विल नेवर हैव अ प्रोफेशनल क्लास से शुरू करता है। हमने उन प्राचीन शब्दों का अर्थ समझना शुरू किया है कि तुमने मुफ्त पाया तो मुफ्त ही दो। हमने पाया है कि जहां पेशेवरपन शुरू होता है, प्रोफेशनलिज्म शुरू होता है, वहां पैसा और आध्यात्मिकता एक साथ नहीं चलते। अब तक दुनिया के सबसे अच्छे पेशेवर, चाहे वो चिकित्सक हो या धार्मिक मार्गदर्शक, बहुत कम ही किसी शराबी को स्थायी रूप से ठीक कर पाए हैं। हम अन्य क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की निंदा नहीं करते, लेकिन हम ये सच्चाई स्वीकार करते हैं कि यह हमारे लिए कार्य नहीं करता, यानी कि प्रोफेशनली किसी की मदद करना। जब जब हमने अपने 12वें कदम को पेशेवर बनाने की कोशिश की है, परिणाम हमेशा एक ही रहा है। हमारा एकमात्र उद्देश्य जो है संदेश पहुंचाना, पूरी तरह विफल हो गया है। ये बिल अपने अनुभव से कहानी के पहले पैरे में समझाने की कोशिश कर रहा है हमको। आगे लिखता है, शराबी कभी भी किसी पैसे लेकर 12वां कदम करने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनते। लगभग शुरू से ही हम इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं कि पीड़ित शराबी के साथ आमने सामने का काम सिर्फ इस इच्छा पर आधारित होना चाहिए, मदद करने और मदद पाने की सच्ची चाह पर। यानी कि जो अल्कोहलिक मैसेज देने आया है वो मदद करने आया है, और जो सामने अल्कोहलिक है वो मदद पाने की इच्छा रखता है। जब कोई एक सदस्य पैसे लेकर बात करता है, चाहे वो मीटिंग में बोल रहा हो या किसी नए शराबी से एकांत में, तो इसका उस पर बहुत खराब असर पड़ सकता है। पैसा लेने की प्रेरणा उसकी नीयत, उसकी बातों और उसे अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए किए गए हर कदम को प्रभावित और दूषित कर देता है। यह हमेशा इतनी स्पष्ट रही है कि हम बहुत ही कम ए सदस्यों ने कभी 12वें कदम का काम पैसे लेकर किया है। इस स्पष्ट समझ के बावजूद सच ये है कि हमारे फेलोशिप में प्रोफेशनलिज्म से अधिक विवाद किसी और विषय पर शायद ही हुआ हो। अब बिल यहाँ पे मुद्दे पे आ रहा है। पहले उसने क्लियर किया, अब वो बता रहा है कि मीटिंग में, हॉल में फर्श साफ करने वाले केयर टेकर, खाना बनाने वाले या नाश्ता बनाने वाले रसोइये, दफ्तरों में काम करने वाली सेक्रेटरियां, किताबें लिखने वाले लेखक, इन सब पर अक्सर गुस्से से आरोप लगाया गया कि वे ए से पैसा कमा रहे हैं। आलोचकों ने यह नजरअंदाज कर दिया कि ये काम 12वें कदम के काम थे ही नहीं, और ये लोग अक्सर ऐसे काम कर रहे थे जो कोई और करना चाहता भी नहीं था या कर सकता भी नहीं था। फिर विवाद और बढ़ गया, और बड़ा हंगामा तब हुआ जब कुछ ए सदस्य शराबियों के लिए रेस्ट होम और फार्म, हाफवे होम्स वगैरह चलाने लगे। कुछ लोग कारखाने और कंपनियों में शराबी कर्मचारियों की समस्या संभालने के लिए नियुक्त हो गए। कुछ अस्पतालों में शराबी वार्ड में नर्स बन गए, और कुछ लोग अल्कोहल एजुकेशन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इन सभी मामलों में यह दावा किया गया कि ए का ज्ञान और अनुभव पैसे के बदले बेचा जा रहा है, इसीलिए ये लोग भी पेशेवर हो गए हैं। आखिरकार पेशेवरपन और गैर पेशेवरपन के बीच एक साफ रेखा दिखाई देने लगी। जब हमने यह तय किया कि 12वां कदम पैसे के बदले नहीं बेचा जा सकता, तो हम बिल्कुल सही थे। लेकिन जब हमने यह घोषित किया कि हमारी फेलोशिप किसी सेवाकर्मी यानी कि सर्विस वर्कर को नौकरी पर नहीं रख सकती,
या कोई एक सदस्य हमारा अनुभव और ज्ञान अन्य क्षेत्रों में नहीं ले जा सकता, तब हम डर की सलाह मान रहे थे। और ये वही डर था जो आज अनुभव की रोशनी में लगभग पूरी तरह मिट चुका है। ये पढ़े गए अंग्रेजी का कुछ हिंदी अनुवाद था। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण। हाय एवरीबॉडी। भगवान की बड़ी कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद, आज का दिन शराब के पहले गुण से दूर हो दोस्तों। तो चलो इस ट्रेडिशन का जो लॉन्ग फॉर्म है वो देखते हैं। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। लेट्स करंट शेयर। ओके, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है क्या? यस भूषण। ओके, तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है ट्रेडिशन का, वो कहता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड रिमेन फॉर एवर नॉन प्रोफेशनल। We define professionalism as the occupation of counseling alcoholics for fees or hire. But we may employ alcoholics where they are going to perform those services for which we may otherwise have to engage non-alcoholics. Such special services may be well recompensed, but our usual 8-12 step work is never to be paid for. इसका मतलब यह है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमेशा से ही नॉन प्रोफेशनल होना चाहिए। तो नॉन प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो हमारी मीटिंगें चलती है या मैसेज देने का काम चलता है या स्पॉन्सरशिप चलती है, एक शराबी दूसरे शराबी से बात करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के लिए हम कभी भी पैसे नहीं लेंगे। अभी यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया है कि प्रोफेशनलिज्म एज द ऑक्यूपेशन ऑफ काउंसेलिंग अल्कोहलिक्स फॉर फीस और हायर। यानी अगर कोई नया मेंबर मेरे से बात करने को आता है एए के मीटिंग रूम में, और मैं अगर उसको मेरे अनुभव कथन के लिए या एए के स्टेप्स बताने के लिए या एए की कार्यक्रम समझाने के लिए मैं उसके पास से अगर पैसे लेता हूं, तो इसे प्रोफेशनलिज्म कहा जाएगा। तो ये जो काम है, ये हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कभी नहीं करेंगे। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे 3 प्रकार के रिश्ता है। इंडिविजुअल यानी मैं एए मेंबर का मेरे समूह के रिश्ता, और मेरा बाकी दुनिया के साथ में रिश्ता, ये अलग रिश्ता है। फिर मेरे समूह का अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल के साथ में रिश्ता और दुनिया के साथ में रिश्ता, और फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल का दुनिया के साथ में रिश्ता। ऐसे कई सारे रिश्तों के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्लियरली बात कही गई है अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी कि एए का समूह या एए का सर्विस सेंटर या एए एज अ होल, ये कभी भी प्रोफेशनली काम नहीं करेगा, पैसे लेकर काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरे वाक्य में ये कहा जाता है बट वी मे एम्प्लॉय अल्कोहलिक्स where they are going to perform those services for which we may otherwise have to engage non-alcoholics. यानी हम एए का संदेश वहन करने के लिए तो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन एए का संदेश वहन करते समय जो बाकी सुविधाएं या सेवाएं लगती है, वो सेवाओं के लिए जहां हमको कोई नॉन अल्कोहलिक रखना पड़ता और उसे पैसे देने पड़ते, ऐसी सेवाएं अगर हम लोगों ने शराबी के पास से करवा के ली, तो उसके लिए हम डेफिनेटली उसको पैसे दे सकते हैं। जैसे कि अभी पढ़ा गया
कि कोई मीटिंग रूम साफ सुथरा रखता है, या कोई खाने पीने का बंदोबस्त करता है, या कोई किसी हॉस्पिटल में नर्स करके अल्कोहलिज्म वार्ड में काम करता है, या कोई किसी रिहैब सेंटर में काउंसलर करके काम करता है, या कोई खुद के नाम से कोई कोई खुद का रिहैब सेंटर खोलता है, तो ये सभी जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की सेवाएं हैं, और ये इंडिविजुअल्स अपनी सेवा के लिए पैसा ले सकते हैं। Such special services may be well compensed, यानी ऐसी जो सेवाएं हैं इनके लिए प्रॉपरली पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शराबी है इसके लिए उसको कम दाम में करवा लेते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं क्या ज्यादातर इंटर ग्रुप्स के मैनेजर जो होते हैं उनको 5,000 6,000 रुपए का पगार दिया जाता है। 5,000 6,000 रुपए में तो आजकल झाड़ू पोता करने वाले भी लोग नहीं मिलते हैं, तो मैनेजर कहाँ से मिलेगा? तो जो सेवा के लिए हमने उसको लिया है, वो सेवा के जो महत्व है, वो महत्व के हिसाब से उसका पैसा जो है वो हमने देना चाहिए। लेकिन हमारा 12वें कदम का जो काम है, ये कभी भी इसके लिए हम लोग पैसा नहीं ले। ये ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा एक इतिहास इसके पीछे बता देता हूं कि जब ही बिल डब्ल्यू ये हमारा किताब लिखने का कार्य चल रहा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस किताब लिखने का कार्य चल रहा था, वो टाइम पे वो पूरी तरह से व्यस्त थे इस काम में। आप सभी जानते हो कि उन दिनों रॉकफेलर फाउंडेशन से हमारे को जो कुछ पैसे मिले थे, उसमें से बिल डब्ल्यू को महीने हफ्ते का $30 के हिसाब से सैलरी के ऊपर उनको वो ऑफिस की सेवाएं, यानी जो हमारा अल्कोहल फाउंडेशन का ऑफिस था, वहां पर आने वाले खतों का जवाब देना, ये किताब लिखना, ये सब जो काम है इसके लिए इनको ये पगार दी जाती थी। वो टाइम पे क्लीवलैंड ग्रुप ने एक ऑब्जेक्शन लिया कि ये हम कहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश वहन जो है ये पूरी तरह से अगर आध्यात्मिक है और इसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, तो फिर बिल डब्ल्यू को भी ये काम करने के लिए पैसा नहीं देना चाहिए। ये जो ऑफिस चला रहा है या किताब लिख रहा है, ये कामों के लिए इनको पैसा नहीं देना चाहिए। और इसके ऊपर काफी बवाल मचा था। और वो टाइम पे क्लीवलैंड ग्रुप ने एक कमिटी अपॉइंट की थी। तो बिल डब्ल्यू ने कहा कि अगर मैं नौकरी कर लूं, मैं दूसरा कुछ कर लूं मेरा उधर निर्वाह करने के लिए, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे ये काम करना है तो ये काम ये सिर्फ संदेश वहन का नहीं है, वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर का काम नहीं है, ये काम अलग है। तो ये जो कमिटी थी, क्लीवलैंड ग्रुप ने एक कमिटी अपॉइंट की थी, और इन्होंने ये जो कार्य था, ये कार्य की विभिन्नता को जांचते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शराबी दूसरे शराबी से जो बात करता है, जो जिसे हम लोग 12th स्टेप कॉल कहते हैं, अपना अनुभव कथन करता है, ये काम जो है ये हमारा संदेश वहन का कार्य है, और सिर्फ ये काम जो है ये विनामूल्य होना चाहिए। लेकिन ये काम करने के लिए जो बाकी सेवाएं लगती है, वो सेवाओं के लिए अगर समझो बिल डब्ल्यू ये किताब नहीं लिखते और हम लोग अगर कोई बाहर के पब्लिशर को या राइटर को या एडिटर को अगर ये काम देते और वो अगर ये किताब लिखता, तो उसको पैसा तो देना ही पड़ता ना। तो जो भी सर्विसेज हम लोग हायर कर रहे हैं, जो सिर्फ संदेश वहन के लिए नहीं है, इनको स्पेशल वर्क के कैटेगरी में किया जाए। तो किताब को लिखना ये स्पेशल वर्क, ये संदेश वहन नहीं बल्कि एक स्पेशल वर्क है, जिससे संदेश वहन संभव हो सकेगा, ऐसा उन्होंने ये निर्णय पास किया। और इसी वजह से जो बिल डब्ल्यू को जो सैलरी जो मिल रही थी वो मिल पाई। अब ये स्पेशल वर्क जो करने वाले लोग हैं, इनको हम लोग स्पेशल वर्कर्स कहते हैं। यानी जब ही फाउंडेशन ऑफिस में शुरुआत के दिनों में जब ये
जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया और उसके बाद में हजारों की तादाद में जब भी खत आने लगे, तो वो खत का जवाब देने के लिए सिर्फ वहां पर बिल डब्ल्यू और रूथ हॉक, वो मैनुअल टाइपराइटर के ऊपर बैठ के उन्होंने कई सारे जवाब लिखकर भेजे और उसके साथ में किताबें बेचने का उन्होंने काम किया। तो ये जो सेवा थी, ये स्पेशल वर्क वाली सेवा थी। उसी के बाद में जैसे एए का काम बढ़ने लगा, हम लोगों ने हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, इसके लिए हमने बॉक्स 459, तो उन दिनों पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे, तो बॉक्स 459 ये हमारा नंबर था और यही नाम से हमारी एक पत्रिका भी छपती थी। और जिसी किसी को एए को संपर्क करना है तो वो बॉक्स 459 को लिखते थे और वहां पर जाके, उन दिनों हैंक पी के ऑफिस में बिल डब्ल्यू और रूथ बैठते थे, कई बार लुइस भी जब भी फ्री होती थी तो जाके बैठती थी, और हैंक पी और ये सब लोग वो बॉक्स 459 में से जो भी खत आए हुए हैं उनको लेके आते थे और उनको रिस्पॉन्ड करने का काम करते थे। अब रूथ ये हमारी पहली जनरल सेक्रेटरी थी, तो शी वॉज द फर्स्ट स्पेशल वर्कर, यानी बिल के अलावा वो स्पेशल वर्कर करके वो दी। जैसे जैसे ये ज्यादा मात्रा में हमारा मैसेज फैलने लगा, वैसे और सेवाओं की जरूरत पड़ने लगी। यानी जब भी मेडिकल फ्रेटर्निटी, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स इस विषय में जानकारी पूछने लगे, तो इनके सवालों का जवाब देने के लिए एक स्टाफ मेंबर अपॉइंट किया गया। वैसे जब भी ग्रुप सर्विसेज, ग्रुप्स बहुत सारी हजारों की तादाद में ग्रुप्स बनने लगे और ग्रुप्स में झगड़े होने लगे या ग्रुप्स में कोई भी प्रॉब्लम होते थे, तो सब लोग हेड ऑफिस को, हेडक्वार्टर को लेटर लिखते थे। अब ये हर एक प्रकार की जो तकलीफ जो ग्रुप में महसूस हो रहे थे, उसके लिए जो जवाब देना था, उसके लिए उनका रिकॉर्ड कीपिंग करना था, उनको जवाब देना था। तो ग्रुप सर्विसेज, ये दूसरा एक फंक्शन हमारे यहाँ पर फाउंडेशन ऑफिस में चालू हो गया कि जो ग्रुपों को जरूरतें लगती है लिटरेचर की या मार्गदर्शन की, उसके लिए एक स्टाफ मेंबर रखा गया। और ऐसे धीरे 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 जैसे हमारा कामकाज बढ़ते गया, वैसे ऑफिस में, फाउंडेशन ऑफिस में हम लोगों ने स्टाफ की बढ़ोतरी करना शुरू किया। और ये सभी जो स्टाफ थे, ये सभी जो सर्विसेज दे रहे थे, वो बिल्कुल बकायदा 9 to 5 जैसा ऑफिस होता है हर एक का, जो काम धंधे पे जाते हैं हम लोग और पूरा दिन वहां पर काम करते हैं, वैसे एक आधी कंपनी जैसे काम करती है, उसी प्रकार से इनका कामकाज चलता था। और ये कामकाज, ये बहुत महत्वपूर्ण कामकाज था, क्योंकि ये कामकाज अगर नहीं होता तो ग्रुपों में बहुत सारा कंफ्यूजन निर्माण होता, ए मेंबर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको टाइमली लेटर्स या उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते, उनको लिटरेचर उपलब्ध नहीं होता, लिटरेचर छपाई के लिए कोई नहीं होता। तो ये सभी जो कहते हैं कि ये सर्विसेज जो है, ये सर्विसेज को, ये 12 स्टेप कॉल नहीं है, ये 12 स्टेप जॉब नहीं है, लेकिन ये सर्विसेज होने के वजह से 12 स्टेप जो है वो संभव होती है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये ट्रेडिशन बहुत क्लियरली बताता है कि समूह के लेवल पे या अंतर समूह के लेवल पे, जहां पर हम लोग पीड़ित शराबी के साथ में बात करते हैं या पीड़ित शराबी के लिए के फैमिली मेंबर से बात करते हैं या उसको स्पॉन्सरशिप करते हैं या स्टेप्स का मार्गदर्शन करते हैं, ये जो काम है ये कभी भी पैसा लेकर यानी प्रोफेशनली नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सेवाओं को संभव करने के लिए इंटर ग्रुप मैनेजर रखे या ग्रुप भी, जो बड़े बड़े ग्रुप से, अभी बहुत समय पहले हमारे यहाँ पर ठाणे में एक सिविल हॉस्पिटल है और वो सिविल हॉस्पिटल में हमको हेल्प डेस्क लगाना था और वो हेल्प डेस्क के लिए उन्होंने फिक्स समय दिया था कि रोज आके 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपको वहां पर बैठना है। अब कौन सा आदमी काम धंधा छोड़ के ये इस प्रकार की सेवा दे सकता है? कोई भी नहीं। तो ऐसे समय के लिए अगर आपने किसी मेंबर जो फिलहाल अनएम्प्लॉयड है उसको वहां पर रखा और उसको कुछ मानधन दिया, उसको जाने आने का रिक्शा का भाड़ा दिया,
उसको वहां पर खाने पीने का जो भी खर्चा है वो रीइंबर्समेंट किया, तो ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये 12 स्टेप कॉल में नहीं गिना जाता है, बल्कि ये सर्विसेज में गिना जाता है। और ये सर्विसेज के लिए ये स्पेशल टास्क या स्पेशल वर्क है, इसके लिए जो एम्प्लॉय किए जाते हैं लोग, इनको स्पेशल वर्कर्स कहा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस ट्रेडिशन के बारे में। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। शेयरिंग करूं क्या स्क्रीन? यस। एक सेकंड। Okay. Taking the case of the club janitor and cook. If a club is going to function, it has to be habitable and hospitable. We tried volunteers who were quickly disenchanted with sweeping floors and brewing coffee 7 days a week. They just didn't show up. Even more important, an empty club couldn't answer its telephone. It was an open invitation to a drunk on a binge who possessed a spare key. So somebody had to look after the place full time. If we hired an alcoholic, he'd receive only what we had have to pay a non-alcoholic for the same job. The job was not to do 12-step work, it was to make 12-step work possible. It was a service proposition, pure and simple. Neither could AA itself function without full-time workers. At the foundation, the intergroup offices, we couldn't employ non-alcoholics as secretaries. We had to have people who knew the AA pitch. But the minute we hired them, the ultra-conservative and fearful ones shelled. Professionalism. At one period, the status of these faithful servants was almost unbearable. They weren't asked to speak at AA meetings because they were making money out of AA. At times, they were actually shunned by fellow members. Even the charitably disposed described them as a necessary evil. Committees took full advantage of this attitude to depress their salaries. They could regain some measure of virtue, it was thought, if they worked for AA real cheap. These notions persisted for years. Then we saw that if a hardworking secretary answered the phone dozens of times a day, listened to 20 wailing wives, arranged hospitalization, and got sponsorship for 10 newcomers, and was gently diplomatic with the irate drunk who complained about the job she was doing and how she was overpaid, then such a person could surely not be called a professional AA. She was not Zing. professionalizing the 12 step. She was just making it possible. She was helping to give the man coming in the door the break he ought to have. Volunteer committeemen and assistants could be of great help, but they could not be expected to carry this load day in and day out. At the foundation, the same story repeats itself. 8 tons of books and literature per month do not package and channel themselves all over the world. Sacks of letters on every conceivable problem, ranging from a lonely heart Eskimo to the growing pains of thousands of groups must be answered by the people who know. Right contacts with the world outside have to be maintained. AA's lifelines have to be tended. So we hire AA staff members, we pay them well, and they earn what they get. They are professional secretaries, but they certainly are not professional AAs. Perhaps the fear will always lurk in every AA heart
that one day our name will be exploited by somebody for real cash. Even the suggestion of such a thing never fails to whip up a hurricane. And we have discovered that hurricanes have a way of mauling with equal severity both the just and the unjust. They are always unreasonable. No individuals have been buffeted by each emotional gust than those A's bold enough to accept employment with outside agency dealing with the alcohol problem. A university wanted an A member to educate the public on alcoholism. A corporation wanted a personal man familiar with the subject. A state drunk farm wanted a manager who could really handle inebriates. The city wanted an experienced social worker who understood what alcohol could do to a family. The State Alcohol Commission wanted a paid researcher. These are only few of the jobs as individuals have been asked to fill. Now and then, A members have bought farms or rest homes where badly beat up toppers could find needed cares. The question was, and sometimes still is, are such activities to be branded as professionalism under AA tradition? So, shall I continue or No, pause? stop. Pause. Over to you, Dr. Ji. यस, ट्रेडिशन छोटा है एक्चुअली में, बट कुछ इसमें बिल जैसे अपनी कहानी पार्श्वभूमि में बता रहा था कि इस ट्रेडिशन के पीछे की जो बातें हो रही थी उसमें पहले जो हमने भाग पढ़ा उसके बाद अगले भाग में वो जैनिटर का उसने वर्णन कर दिया जिसके बारे में भूषण ने बताया कि पहले एक एक लफ्ज हुआ करते थे। इंडिया में तो कभी हुए नहीं, शायद मुझे अगर होगा तो भी पता नहीं है, लेकिन यूएस में है। तो उसमें वहां जो रसोईया या जैनिटर होता था वो सेवाएं देते थे और उनको फुल टाइम सेवाएं देनी पड़ती थी। हमने स्वयं सेवकों को आजमाया, यानी कि वॉलंटियर मेंबर्स को आजमाया, लेकिन वो बहुत जल्दी उब गए। सातों दिन फर्श झाड़ना और कॉफी बनाना किसी को पसंद नहीं आया, तो वे आना ही बंद हो गए। और भी जरूरी बात यह थी कि खाली पड़ा क्लब फोन का जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन यह शराब के नशे में धुत किसी सदस्य के लिए जिसके पास स्पेयर चाबी हो खुला निमंत्रण बन जाता था। इसलिए किसी न किसी को पूरे समय क्लब की देखभाल करनी ही पड़ती थी। अगर हमने किसी शराबी को नौकरी दी तो उसे उतना ही भुगतान मिलता जितना एक गैर शराबी कर्मचारी को उसी काम के लिए मिलता। उसका काम 12वां कदम करना नहीं था, उसका काम तो सिर्फ यह सुनिश्चित करना था कि 12वां कदम किया जा सके। यह पूरी तरह से एक सेवा कार्य था, सीधा और सरल। आगे लिखता है कि ए खुद भी बिना फुल टाइम कर्मचारियों से नहीं चल सकता था। फाउंडेशन ऑफिस, जो अभी आज हम इसको जनरल सर्विस ऑफिस बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफिस और इंटरव्यू कार्यालयों में हम गैर शराबियों को सचिव के रूप में नहीं देख सकते थे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो एक ही भाषा और जरूरत को समझते हो। ये फुटनोट था। लेकिन जैसे ही हम किसी को नौकरी पर रखते, अत्यंत कट्टर और डरे हुए लोग चिल्लाने लगते, ये तो पेशेवरपन है। यानी कि ए मेंबर को ए के अंदर नौकरी पे रखते, तभी ये बात शुरू हो जाती कि यह पेशेवरपन है। एक समय तो इन वफादार सेवकों की स्थिति लगभग असहनीय हो गई थी। उन्हें ए मीटिंग में बोलने तक के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वह ए से पैसा कमा रहे हैं। कभी कभी तो साथी सदस्यों ने उन्हें सामाजिक रूप से भी नजरअंदाज कर दिया। जो लोग दयालु थे वह उन्हें एक आवश्यक बुराई कहकर पुकारते थे। समितियां इसी मानसिकता का लाभ उठाती थी ताकि उनके वेतन कम रखे जा सके। सोचा जाता था कि यदि ये बहुत कम वेतन पर काम करे तो शायद वे फिर से पवित्र माने जाएंगे। ये धारणाएं वर्षों तक बनी रही।
जैसे हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशंस अनुभव से बने हुए हैं। तो जब बिल कहता है कि ये धारणाएं वर्षों तक बनी रही हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 39-40 से लेकर के ये 50 तक के 15 सालों में क्या हुआ होगा। फिर अनुभव ने सच्चाई दिखा दी। हमने देखा कि एक मेहनती सचिव दिन में दर्जनों फोन उठाती है, 20 रोती हुई पत्नियों की बात सुनती है, अस्पताल में भर्ती की व्यवस्था करती है, 10 नए सदस्यों के लिए स्पॉन्सर ढूंढती है और गुस्से में शिकायत करने वाले शराबी को धैर्य और विनम्रता से संभालती है। और फिर भी उस पर आरोप लगता है कि वह ज्यादा पैसा ले रही है, जो साफ हो गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति को पेशेवर ए नहीं कहा जा सकता। यह 12वां कदम को पेशेवर नहीं बना रही थी, यह तो केवल इसे संभव बना रही थी। वो उस आदमी को जो दरवाजे से अंदर आ रहा है वो मौका दे रही थी जिसका वो हकदार है। स्वयंसेवी समिति सदस्य और सहायक बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे यह भारी जिम्मेदारी हर दिन साल दर साल निभाएं। अब फाउंडेशन में भी यही कहानी दोहराई जाती है। फाउंडेशन ऑफिस में हर महीने, उस वक्त जब बिल ने लिखा था, हर महीने 8 टन किताबें और लिटरेचर अपने आप पैक होकर दुनिया भर में तो नहीं पहुंच जाएगा, उसके लिए लोग लगेंगे। हर प्रकार की एक ही समस्याओं से भरे हुए पत्र किसी अकेले पड़े एस्किमो से लेकर हजारों समूहों की बढ़ते परेशानियों तक, उनका उत्तर ऐसे लोगों को देना होगा जो जानते हैं कि वह क्या कहना है। बाहरी दुनिया के साथ सही संपर्क बनाए रखना पड़ता है, एक ही जीवन रेखाओं की देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए हम ए सदस्य कर्मचारियों को रखते हैं, हम उन्हें अच्छा वेतन देते हैं और वे अपने काम से पूरी तरह हकदार होते हैं। ये पेशेवर सचिव हैं, लेकिन ये पेशेवर ए नहीं है। शायद हर एक सदस्य के दिल में यह डर हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा कि किसी दिन हमारे नाम का इस्तेमाल कोई व्यक्ति सच्चे पैसे कमाने के लिए करेगा, कोई अच्छे पैसे कमाने के लिए करेगा। ऐसी संभावना का जरा सा भी संकेत हमेशा एक तूफान खड़ा कर देता है, और हमने पाया कि ऐसे तूफान जस्ट और अनजस्ट, न्याय और अन्याय दोनों पर एक सी मार करते हैं। वे कभी भी तर्कसंगत नहीं होते हैं। बाहरी एजेंसियों से काम करने वाले ए सदस्यों पर हमला। अब जैसे बिल आगे बताता था कि जो लोग जहां पे जरूरत थी वहां पे जाके सेवाएं देते थे, उन पर भी हमला होने लगा। हमला यानी कि वर्बल। इन भावनात्मक झंझावातों से सबसे अधिक पिट गए वे ए सदस्य होते रहे हैं जो इतनी हिम्मत करते थे कि किसी शराब समस्या से जुड़ी बाहरी संस्थाओं में नौकरी स्वीकार कर ले। एक विश्वविद्यालय किसी ए सदस्य को शराबवाद के बारे में जानने की जनता कोई शिक्षित करने के लिए रखना चाहता था, तो उसे कोई ए सदस्य चाहिए था। एक कॉरपोरेशन ऐसा अधिकारी चाहता था जो शराब की समस्या को समझता हो। एक राज्य के ड्रंक फॉर्म को ऐसा प्रबंधक चाहिए था जो मदहोश लोगों को ठीक से संभाल सके। एक शहर को किसी प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए था जो समझता हो कि शराब एक परिवार को कैसे तोड़ देती है। एक राज्य की अल्कोहल आयोग एक वेतनभोगी शोधकर्ता रखना चाहती थी। ये तो केवल कुछ ही नौकरियों के उदाहरण हैं जो व्यक्तिगत ए सदस्यों को ऑफर किए गए थे। कभी कभी ए सदस्यों ने फार्म या रेस्ट होम भी खरीदे जहां बुरी तरह टूट चुके शराबियों को जरूरी देखभाल मिल सके। अब इसमें मुख्य प्रश्न यह आता था, प्रश्न था, और कभी कभी आज भी है, क्या ऐसी गतिविधियों को ए की परंपरा के तहत प्रोफेशनलिज्म माना जाए? यहां तक चंदू ने पढ़ा और मैंने ट्रांसलेट किया। यहाँ पे बात करते करते मुझे एक किस्सा ध्यान में आ गया, अनुभव ध्यान में आ गया, जो मैं भूषण शेयर करना चाहता हूँ। हमने जब इस सत्यमेव जयते आया तभी हम बहुत सारे कॉल की अपेक्षा कर रहे थे।
और वो बहुत सारे कॉल के लिए हमारे पास वॉलंटियर मेंबर्स ढेर सारे हमने जमा किए सारे भारत में। लेकिन उस वक्त अपना जीएसओ ऑफिस में हमारे पास 4 ही कर्मचारी थे, स्पेशल वर्कर्स, मैनेजर, एक अकाउंटेंट था, एक क्लर्क था और एक पीआई कोऑर्डिनेटर था। इसके अलावा हम ट्रस्टीज वगैरह थे। तो तभी हमने ये फोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए कुछ एक कॉलेज के बच्चे भी बुलाए थे कि भाई वो भी आके हमारी हेल्प कर सके। वे भी आए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स आ गए और भारत भर में कई जगह पे ऐसे कॉल सेंटर्स जैसे बन गए, लोगों ने नंबर्स दे दिए, अपने करने लगे। मैं ये बात ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स आए और जिन्होंने फोन कॉल रिसीव किए, उन्होंने कुछ ही महीनों तक के लिए किए, 2 महीने, 3 महीने या अधिक 6 महीने तक कहीं ना कहीं कॉल आते रहे। लेकिन हमारे जो 4 वहां पे पेड स्पेशल वर्कर्स एम्प्लॉइज थे, वो 6 के 6 दिन, हर काम के दिन और सालों साल तक वे वही कंटिन्यूस काम करते रहे। और बिल, ये जो अभी तक हमने बिल को सुना, आगे भी थोड़ा सा बाकी है, बिल उसमें यही समझाना चाहता है हमको कि अगर हम किसी एक के काम के पैसे देते हैं और फिर ये हम बोलने लग पड़ते हैं कि भाई ये एक के काम के पैसे लेता है, जबकि वो काम हम पहली बात तो खुद करने को तैयार नहीं है, और अगर हम कहीं उत्साही वॉलंटियर ढूंढ भी लें तो उत्साही वॉलंटियर तो सालों साल वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ए को भी जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक ही पिच को जानते हो, एक ही भाषा को जानते हो, जो ए को जानते हो। और ऐसा कौन हो सकता है? तो ए मेंबर ही हो सकता है। तो अगर ए मेंबर्स को हम स्पेशल वर्कर्स बोल के एम्प्लॉय करते हैं तो उनको हम जो बाजार मार्केट में मुआवजा चलता है वो देना चाहिए, प्लस उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसी दृष्टि या नजर से देखना कि एक एक काम के लिए पैसे कमाता है, ये गलत है। क्योंकि ए नॉन प्रोफेशनल एक ही जगह पे है और वो है मैसेज देने का काम। ओवर टू यू पुष्कर। तो यहाँ पर हम लोग हर एक जन अगर अपने गिरेबा में झांक कर देखे तो जहां पर भी हम लोग वॉलंटियर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वहां पर हमें फेलियर ही नजर आता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि कोई भी सेवा समझो दिन भर चलानी हो, 10 से 5 ऑफिस को चालू रखना हो, तो कौन सा वॉलंटियर है जो इतना समय दे सकता है? क्योंकि अगर किसी वॉलंटियर ने समय देना भी है तो वो हफ्ते में एक आधा दिन दे सकता है, जो कि शायद उसके छुट्टी का दिन हो। लेकिन अगर वो रोजाना करना चाहे तो वो जिंदा कैसे रहेगा, वो कमाएगा कैसे, वो घर कैसे चलाएगा? तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि भाई तुम ए का काम करो और अपना घर का जिम्मेदारी पूरा नहीं करो। तो ऑब्वियसली वॉलंटियर्स ये टेम्पररी या शॉर्ट टर्म वाले जो पोजीशंस और जॉब्स है यही कर सकते हैं। लेकिन जहां पर कंसिस्टेंसी है, जहां पर एक जैसे एक आध प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है उस प्रकार से चलने का, विथ इफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, इस प्रकार से रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से काम करना अगर होगा तो ये वॉलंटियर से अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरुआत के दिनों में ही ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझी, और इसीलिए अगर आप एए की सेवाओं में देखते हो तो 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट इज इलेक्टेड, यानी कि हमारे समूह में हमारे ग्रुप का सेक्रेटरी है, ये इलेक्ट करते हैं हम लोग, या हमारे समूह का जो आईजीआर, जो अंतर समूह में सेवा देने को जाते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। यानी कोई ना कोई अपना विलिंगनेस दिखाता है और फिर समूह में अगर 2-3 है जो इच्छुक है तो उनमें से इलेक्शन करके जो समूह की सत्सद विवेक बुद्धि को लगता है
कि भाई ये एए की सेवा देने के लिए सबसे बेहतर आदमी है, उसे हम लोग पहला चांस देते हैं। यानी एए की सेवा करने का अधिकार ये हर एक सदस्य का अधिकार है, लेकिन किसे ये पहला अधिकार मिलना चाहिए और किसको बाद में मिलना चाहिए, ये समूह की सत विवेक बुद्धि पे निर्भर होता है। तो समझ लो कि मेरे समूह ने अपने सत विवेक बुद्धि से निर्णय लिया कि आगे की सर्विसेज देने के लिए मुझे पुशन चाहिए। तो पुशन क्यों चाहिए? तो उसको अच्छा पढ़ा लिखा है, वो अच्छी पोजीशंस पे उसने काम किया हुआ है, वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, तो इसको ए का पैसा ढापने का इच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पर पूरे उसको दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तो वो पूरे तन मन धन के साथ में ए का काम कर पाएगा। अगर ये हिसाब से आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो पूषण को, और फिर साथ में ये भी बोलते हो कि भाई पूषण की ये सेवा के लिए हम उसको पैसा तो नहीं देंगे, और उसको हम लोग 1 साल का ही मुदत देंगे, और उसके साथ में उसको रोटेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्टेड पोजीशन की टर्म होती है, और ये टर्म के बाद में वो आदमी को रोटेट होना पड़ता है। तो समझो पूषण ऐसा एक आध यूनिक आदमी होगा भी जिसके पास सब कुछ था, टैलेंट भी था, टाइम भी था, ट्रेजर भी था, और उसने अपनी पूरी शिद्दत से 1 साल सेवा दे दी, और अभी पूषण रोटेट होके बाहर निकल गया। अभी वैसे ही पात्रता का या उससे ही बेहतर पात्रता का आदमी ऐसे ही सेवा देने के लिए दूसरा लाना, यह हमेशा से ही चैलेंज रहेगा। तो क्योंकि कोई भी जो इलेक्टेड पोजीशन होती है, उसको हम लोग एक प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन होता है कि कोई भी सेवा, कोई भी कुर्सी के ऊपर एक आदमी ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकता है, निश्चित समय पर ही बैठ सकता है, ताकि वो किसी का मक्ता नहीं बने, किसी की जागीर नहीं बने। तो अभी पूषण की जागीर नहीं बनी, पूषण तो चला गया, उसके जगह पे दूसरा कोई आना होगा, उसको वापस सब सीखना होगा, वापस समझना होगा, और जब तक वो तैयार होके पूरी तरह से कंट्रीब्यूटरी बन जाए, तब तक वो भी रोटेट हो जाएगा। अगर ये बार बार यही वापस जीरो पे चला जाएगा और वापस सीखते 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 थोड़ी सी सेवा देने तक चला जाएगा, तो यही स्वरूप रहेगा वॉलंटियर वर्कर्स का। क्योंकि कोई भी वॉलंटियर ये ट्रेंड नहीं है किसी काम में, उसके दिल में प्यार है, सेवा करने की इच्छा है, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसको मालूम नहीं करना क्या है, तो वो आता है, अपने काम पे सीखता है, और फिर सीखते सीखते कुछ करने लगता है, और वो जब भी सीखकर तैयार हो जाता है, तब तक वो रोटेट हो जाता है। लेकिन ये तभी ठीक है जहां पर एए के निर्णय लेना हो या स्पिरिचुअल निर्णय लेने हो, वहां पर ठीक है। लेकिन अगर ऑफिस जॉब में अगर बार बार आदमी बदलता रहे, तो ऑफिस की इफिशियंसी तो खत्म हो जाएगी। ऑफिस में तो हमें लॉन्ग सर्विंग लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो समझो हमारे पास में एक किताब का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग ने लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग हजारों की तादाद में किताबें छापते हैं, तो हमको सस्ते में सस्ते, अच्छे में अच्छी, बेहतर से बेहतर पेपर पर कलरफुल और बेस्ट क्वालिटी का लिटरेचर छाप कर चाहिए। तो अगर हर साल अगर हम लोग आदमी को बदलते रहेंगे, तो हमको क्वालिटी वापस जीरो हो जाएगी। तो हमें ऑफिस में ये कंटिन्यूटी चाहिए, हमारे को ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हमको ऑफिस में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, और ये जो है ये हमें प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए हम लोग प्रोफेशनल्स को ही एम्प्लॉय करें, ये बेटर होगा। लेकिन जहां पर स्पिरिचुअल निर्णय है, जहां पर स्पिरिचुअल काम है, शराबी के साथ में काम करना है, उसको आत्मीयता और प्यार और सहचर्या से उसको मदद करना है, वहां पर वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। तो हमने टोटल जो सर्विसेज है उसके 2 डिविजन्स कर देते हैं। एक डिवीजन है जो वर्किंग विथ द अल्कोहलिक वाली जो सेवाएं है, ये सभी जो है ये नॉन प्रोफेशनल होनी चाहिए और ये वॉलंटरी ही होनी चाहिए।
लेकिन वर्किंग फॉर द अल्कोहलिक वाली जो सेवा है, जैसे किताबों का छपना, डॉक्टरों के साथ में पत्र व्यवहार करना, जैसे रिहैब सेंटर्स को खत भेजना, उनके साथ में डेटा शेयर करना, या अलग अलग कमिटीज पे या अपना कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना, ये सभी जो टास्क है ये प्रोफेशनल्स के टास्क है। उसमें टाइम, इफिशिएंसी, ये सब जो जो एक कंपनी चलाने में लगने वाले जो तत्व है वो लगते हैं। ये सभी जो है ये बिजनेस साइड ऑफ द फेलोशिप जो है, यहाँ पर हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। तो ये हमने बहुत जल्द हमारे इसमें सीखा कि प्रोफेशनल्स को इफिशिएंसी हमारी ऑफिसेस चलाने के लिए जरूरत है, लेकिन समूहों को चलाने के लिए और ए मेंबर्स को दूसरे पीड़ितों के साथ में काम करने के लिए जो है ये नॉन प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अभी अगर हमने प्रोफेशनल टास्क के लिए प्रोफेशनल्स को हायर किया हुआ है, तो उनको प्रोफेशनल्स को जैसा देना चाहिए वैसा ही पगार देना होगा। जैसे सपोज एक शराब बेचने वाली कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजर है, उसको जो पगार मिलता होगा उतना ही जो जिंदगी बेचने वाला, जो ये हमारा काम करने वाला जो स्टाफ मेंबर है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर शहर में, हर गांव में, हर हॉस्पिटल में एक का ग्रुप खुला है कि नहीं, हर रिहैब सेंटर में एक का लिटरेचर जा रहा है कि नहीं, हर वो जो समाज कार्य करने वाला व्यक्ति है उस तक एक ही इंफॉर्मेशन पहुंच रही कि नहीं, हॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों में एक का जिक्र हो रहा है कि नहीं, एक का नाम बार बार सबके दिमाग में आ रहा है कि नहीं। ये सब जो विचार करने के लिए जो जो टैलेंट चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए, वो हमको टॉप क्वालिटी का चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स में एक कहावत है कि इफ यू पे पीनट्स यू विल गेट ओनली मंकीज, यानी कि अगर आप चने कुरमुरे ही पगार में दोगे तो सिर्फ माकड़ ही मिलेगा आपको। अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए तो आपको मार्केट के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको पैसा देने को भी तैयार होना चाहिए। लेकिन फिर जब भी हम लोग देखते हैं कि आज कोई भी प्रगत जो देश है जहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रही है, यहाँ पर आपको हमेशा ये दिखेगा कि जो सेंट्रल ऑफिस है, जो जीएसओ है, वहां पर ढेर सारे स्टाफ मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ग्रेप वाइन और ये वर्ल्ड सर्विसेज मिलके अगर देखते हैं तो 100 के ऊपर स्टाफ वहां पर काम करता है, और इनको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज और सैलरीज और ये सब जो है वर्क प्रिविलेजेस जो है ये इनको दिए जाते हैं। तो कई बार शुरुआत के दिनों में ये सवाल उठता था कि यार इतना सारा पैसा खर्चना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एनुअल बजट जो है ये जायज है क्या? और उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरती से आर्टिकल लिखा हुआ था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अगर बाकी चैरिटीज को हम लोग देखते हैं तो कॉस्ट पर बेनिफिशियरी ये हमारी सबसे कम में आती है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि आज अगर हमारे जीएसओ इंडिया का समझो सालाना खर्चा है 50 लाख रुपए, और अगर हम लोग देखते हैं तो सपोज हमारे पास में 50,000 मेंबर्स है ऑल ओवर इंडिया, तो इसका मतलब हमारे सर्विसेज की कॉस्ट 100 रुपीज पर मेंबर पर ईयर है, यानी दिन के कुछ 30 पैसे जितनी कॉस्ट है। तो अगर हर एक सदस्य सिर्फ 30 पैसे का खर्चा रोजाना देता है तो मेरा जीएसओ का जो पूरा जो कामकाज है वो इफिशिएंटली चलता है। तो अगर मैं देखता हूं कि व्हाट इज माय कॉस्ट पर मेंबर, या ये जो पूरा जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट है, ये प्रोबेबली दुनिया के जो भी सर्विसेज ऐसे देने वाले जो बाकी एनजीओज है उनके हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि हमारी मेंबरशिप बहुत बड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जीएसओ न्यूयॉर्क का एनुअल बजट $10 मिलियन का है, लेकिन अगर हमारी फेलोशिप अगर 1 मिलियन यानी 10 लाख
लोगों की है यूएस की, तो इसका मतलब कॉस्ट पर सर्विस इज जस्ट $10 पर ईयर, खाली सालाना $10 इतनी एक मेंबर के पीछे कॉस्ट है, यानी कुछ ही चंद सेंट्स जितनी कॉस्ट है। लेकिन ये कॉस्ट देने की वजह से हमारा काम पूरा प्रोफेशनली एक मल्टीनेशनल कंपनी के जैसा इफिशिएंटली होता है, और इनका काम अच्छी तरीके से होने की वजह से हजारों डॉक्टर्स लोगों को ए में भेजते हैं, हजारों रिहैब सेंटर्स डिस्चार्ज के बाद में उनको ए में भेजते हैं, हजारों फिल्म्स में से मैसेज मिलता है, हजारों सोशल वर्कर्स के पास में लोग ए में भेजे जाते हैं, और जिसके वजह से हम जो ग्रुपों में बैठे हुए ए मेंबर्स है उनको बैठे बैठे 12 स्टेप कॉल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर ये सर्विसेज का जो चाराना का जो खर्चा है वो हम देते हैं, और जिसके वजह से मेरी जिंदगी बचाने वाला 12 स्टेप कॉल करने का मौका मुझे मिलता है, तो ये तो बहुत ही कम कॉस्ट हुई ना मेरे लिए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो हमारे वर्कर्स हैं उनको अगर हम लोग टॉप क्वालिटी के वर्कर्स ढूंढेंगे और उनको टॉप क्वालिटी का सैलरीज और बेनिफिट्स देंगे, तो वो टॉप क्वालिटी का काम करेंगे, जिसके वजह से मुझे टॉप क्वालिटी का 12 स्टेप अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मेरा 12 स्टेप कॉल ये नॉन प्रोफेशनल है, लेकिन ये 12 स्टेप कॉल मेरे तक पहुंचने के लिए जो सेवाएं करनी पड़ती है, वो सेवाओं के पीछे जिसका ब्रेन है, जिसका एफर्ट है, जिसका मेहनत है, वो प्रोफेशनली किया जाए तो ही मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कॉल मुझे मिलने वाला है। अब आखिरी जो मुद्दा है, फिलहाल भारतवर्ष में भी उसके प्रति काफी चर्चा हो रही है, ए मेंबर्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन चंदू ने अगला पैसेज पढ़ने के बाद। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. We think the answer is no. Members who select such full-time careers do not professionalize AA's 12 step. The road to this conclusion was long and rocky. At first, we couldn't see the real issue involved. In former days, the moment an AA hired out to such enterprises, he was immediately tempted to use the name Alcoholics Anonymous for publicity or money-raising purposes. Drunk farms, educational ventures, state legislators, and commissions advertised the fact that AA members served them. Unthinkingly, AAs so employed recklessly broke anonymity to thump the tub for their pet enterprise. For this reason, some very good causes and all connected with them suffered unjust criticism from AA groups. More often than not, these onslaughts were spearheaded by the cry, professionalism. That guy is making money out of AA, yet not a single one of them had been hired to do AA's 12-step work. The violation in these instances was not professionalism at all. It was breaking anonymity. AA's sole purpose was being compromised and the name of Alcoholics Anonymous was being misused. It is significant now that almost to AA in our fellowship breaks anonymity at the public level, that nearly all these fears were subsided. We see that we have no right or need to discourage AAs who wish to work as individuals in these wider fields. It would be actually antisocial were we to forbid them. We cannot declare AA such a closed corporation that we keep our knowledge and our experience top secret. If an AA member acting as a citizen can become a better researcher, educator, personal officer, then why not? Everybody gains and we have lost nothing. True, some of the projects to which AAs have attached themselves have been ill-conceived, but that makes not the slightest difference with the principle involved. This is the exciting welter of events which has finally cast up AA's tradition of non-professionalism. Our 12-step work is never to be paid for, but those who labor in service for us are worthy of their hire. Thank you very much. तो ये जो लास्ट के चंद पैरा हैं
उसमें बिल उसी लाइन को चालू करता है। प्रश्न यह था, और कभी कभी आज भी है, क्या ऐसी गतिविधियों को एक ही परंपरा के तहत पेशेवरपन माना जाए? हम सोचते हैं कि जवाब है नहीं। जो सदस्य ऐसे पूर्णकालिक कैरियर चुनते हैं वह एक के 12वें कदम के काम को पेशेवर नहीं बनाते, लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने का रास्ता लंबा और कठिन था। शुरू शुरू में हम असली मुद्दे को समझ नहीं पाए। पहले के दिनों में जैसे ही कोई ये सदस्य ऐसी किसी संस्था में नौकरी करता, उसे तुरंत यह प्रलोभन होने लगता कि वह अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की लोकप्रियता या धन जुटाने के लिए इस्तेमाल करे। ड्रंक फार्म, शैक्षणिक संस्थाएं, राज्य विधानसभाएं और आयोग ये सब गर्व से बताते थे कि उनके साथ ए सदस्य काम कर रहे हैं। अनजाने में ही इन संस्थाओं में कार्यरत ए सदस्य अपनी पसंदीदा संस्था का प्रचार करने के लिए तेजी से अपनी अनामिकता तोड़ बैठते थे। इसी वजह से बहुत सी अच्छी पहलें और उनसे जुड़े सभी लोग ए समूहों की अनुचित आलोचना का शिकार बने। अधिकतर मामलों में यह हमला इस नारे से शुरू होता था कि पेशेवरपन, यह आदमी ए से पैसा कमा रहा है। लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति ए का 12वां कदम करने के लिए नौकरी पर नहीं रखा गया था। इन मामलों में वास्तविक गलती थी पेशेवरपन नहीं था, वास्तविक गलती थी अनामिकता का टूटना। ए का एकमात्र उद्देश्य समझौता हो रहा था और अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम का दुरुपयोग किया जा रहा था। ये बात महत्वपूर्ण है। अब जब हमारी फेलोशिप में लगभग कोई भी सदस्य सार्वजनिक स्तर पर अपनी पहचान नहीं बताता, अनोनिमिटी बरकरार रखता है, तो लगभग सारे पुराने डर समाप्त हो गए हैं। अब हम समझते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है और कोई आवश्यकता नहीं है कि उन ए सदस्यों को हतोत्साहित करें जो व्यक्तिगत रूप से बड़े सामाजिक क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। उन्हें रोकना तो वास्तव में असामाजिक व्यवहार होगा। हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक इतना बंद संगठन नहीं बना सकते कि हमारा ज्ञान और अनुभव टॉप सीक्रेट बन जाए। यदि कोई ए सदस्य एक नागरिक के रूप में एक बेहतर शोधकर्ता या शिक्षक या कार्मिक अधिकारी बन सकता है तो क्यों नहीं? इससे सबका ही लाभ होता है और हमारा कुछ भी नहीं जाता। हाँ, यह सच है कि कुछ परियोजनाएं जिनसे ये सदस्य जुड़े कमजोर या गलत सोची समझी थी, लेकिन इस सिद्धांत के संदर्भ में इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। घटनाओं की यही रोमांचक श्रृंखला है जिसने अंततः ए की नॉन प्रोफेशनलिज्म की परंपरा को जन्म दिया। हमारा 12वां कदम कभी भी पैसों के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग हमारे लिए सेवा कार्य करते हैं वे अपने परिश्रमिक के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। ये उनका हक रखते हैं। एक समरी में यही है कि 12वां कदम के कभी पैसे न लिए जाएं। ए का संदेश बेचा नहीं जा सकता। जैसे या पैसे या लालच बीच में आता है तो आध्यात्मिकता कमजोर पड़ जाती है। सेवा केंद्र चलाने के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी जरूरी हैं। फोन उठाना, ऑफिस का काम करना, सेक्रेटरी काम करना, पुस्तकों और साहित्य को दुनिया भर में भेजना, ये फुल टाइम जॉब है, ये यहाँ लगेंगे ही। वेतन, कर्मचारियों को वेतन देना उन्हें पेशेवर ये नहीं बनाता। ये प्रोफेशनल सेक्रेटरीज हैं, लेकिन प्रोफेशनल एज नहीं है। बिल ने ये हमें बताना चाहा है। वे उसी तरह वेतन देते हैं जैसे कोई भी कर्मचारी अपने काम का वेतन देता है। उनके काम का उद्देश्य ए के प्राथमिक लक्ष्य को संभव बनाना है। ए के सदस्य बाहर नौकरियां कर सकते हैं, वो भी अल्कोहलिज्म की फील्ड में। ये बहुत लोगों का मैं आज भी देखता हूं कि कोई ए मेंबर अगर कहीं कोई कोर्स करके रिहैबिलिटेशन सेंटर में काउंसलर लग जाता है तो वो गलत नजर से देखा जाता है। वो उसका चॉइस है वो, और उसे वैसा करने का हक है।
और ये था 8वें कदम का 8वें ट्रेडिशन का ट्रांसलेशन। ओवर टू यू क्वेश्चन। तो इसेंशियली ये ट्रेडिशन में 3 भाग किए गए हैं। पहला भाग यानी एए का संदेश वहन करने का काम जो है, इसके लिए पैसे लिए नहीं जा सकते। इसका मतलब एए का समूह अपनी सदस्यता के लिए पैसे नहीं ले सकता। एए के मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकता। एए की स्पॉन्सरशिप करने के लिए मैं किसी के पास से पैसा नहीं ले सकता, या किसी को जाके घर पे जाकर उसको एए का संदेशा देने के लिए मैं उसके पास से पैसा नहीं ले सकता। तो ये सब जो काम है, जिसे हम लोग एए का संदेश वहन का जो कार्य है या उसका कार्यक्रम समझने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है ये नॉन प्रोफेशनल यानी पैसे लेकर नहीं की जा सकेगी। ओके, तो एए का समूह ये काम नहीं करेगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं एक ऐसा सदस्य हूं जिसने कुछ मैंने कोर्सेज किए हैं, मैंने काउंसलर बनने के लिए कुछ कोर्स किया है और मैं अभी अल्कोहलिज्म काउंसलर बना हुआ हूं, और मैं अपनी सेवाएं अगर कोई इच्छुक है उसे देकर उससे कुछ चार्जेस ले सकता हूं, तो क्या मैं प्रोफेशनल बन सकता हूं ये अल्कोहलिज्म के मामले में? तो यस, एज अ इंडिविजुअल मुझे ये सहूलियत है, लेकिन एज एन ए मेंबर मुझे सहूलियत नहीं है। अब इसका दोनों का बीच का फर्क समझते हैं। तो जब भी मैं एए के ग्रुप में लकी को मिलता हूं और एए के ग्रुप में लकी को मदद करता हूं, तो ये जो है ये मैं प्रोफेशनली नहीं कर रहा हूं और इसके लिए मैं पैसे चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन अगर लकी ने मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद में बताया कि मुझे आपने बहुत कुछ ये एए के लिटरेचर के बाहर का भी सीखा हुआ है और मुझे ये सब भी चाहिए, तो मैं आपको एंगेज करना चाहता हूं और मैं हफ्ते के 3 दिन आपको ये 2 घंटा आप मुझे देंगे, तो आपका क्या चार्जेस रहेगा? अब ये हो गया प्रोफेशनल। अगर मैंने करना है या नहीं करना ये अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये एए की बाहर की एक्टिविटी है और मैं अगर अपने आप को अल्कोहलिज्म काउंसलर बनाता हूं, अलग से तैयार करता हूं, प्रोफेशनली इक्विप करता हूं, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं? तो मैं ये कर सकता हूं। दूसरी बात, क्या एए का समूह का सेक्रेटरी बनने के लिए कोई पगार दे सकता है किसी को? तो नहीं। आईजीआर बनने के लिए मैं पैसे दे सकता हूं? तो नहीं। या एए की किसी कमिटी में काम करने के लिए पैसे दे सकता हूं? तो नहीं, क्योंकि ये एए का काम है और ये प्रोफेशनली नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमारे कमिटी ने, हमारे मेंबर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते है और कोई वक्त नहीं दे सकता है, कोई दे सकता है, कोई 2 घंटे दे सकता है, कोई 1 दिन दे सकता है, लेकिन हमने कोई काम अगर गले में लिया हुआ है और वो काम के लिए फुल टाइम के लिए हमको अगर कोई एक फुल टाइम एम्प्लॉई चाहिए, तो क्या ये एम्प्लॉई हम ए ग्रुप के नाते रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल टास्क है, ये स्पेशल वर्क है और उसके लिए हम लोग किसी ए मेंबर को ही पगार के ऊपर रख सकते। सपोज हमारे यहाँ पर रिवाइवर समूह के बगल में ठाणे जेल है। अगर ठाणे जेल में बोला जाता है कि भाई हर रोज सुबह 11 से 1 बजे आके आपको यहाँ पर आपका डेस्क लगा के बैठना है और कोई आके अगर इंफॉर्मेशन पूछे तो उनको आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम लोग किसी एक मेंबर को कुछ कॉम्पेंसेशन दे के वहां पर बिठवा सकते हैं या म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में बिठवा सकते हैं, और हम लोग ये उस कार्य के लिए उसको पैसा दे सकते हैं। ये एए का मैसेज देने का कार्य नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है एए की इंफॉर्मेशन देना। तो एए की इंफॉर्मेशन देना और एए का मैसेज देना, इसमें जो अंतर है वो भी ये ट्रेडिशन में एक्सप्लेन किया है। उसी प्रकार से लार्ज स्केल पर जब भी एए के प्रति इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो काम हमारे सेंट्रल ऑफिसेस से किया जाता है
और ये सेंट्रल ऑफिसेस में ट्रस्टीज तो क्वार्टरली एक दफा मिलते हैं, डेलीगेट सालाना एक दफा मिलते हैं, लेकिन रोजाना 9 बजे से 5 बजे तक जीएसओ का ऑफिस अगर चालू रहना है तो वहां के भी एम्प्लॉयज रहेंगे, उनको सैलरीज रहेंगे, बोनसेस रहेंगे, प्रोविडेंट फंड रहेगा, ग्रेचुइटी रहेगा, उनको हॉलीडेज रहेंगे, लीव बैलेंसेस रहेंगे। ये सभी जो एक आम आदमी को जो नौकरी करने के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सभी बेनिफिट्स इनको मिलेंगे और वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी के होंगे। ये भी मुद्दा इसी ट्रेडिशन में आता है। और अंतिम मुद्दा ये आता है कि आप ए मेंबर बनने के नाते आप कुछ सीख गए हो। अब ये जो सीख गए हो ये समाज के किसी उपयोग का होना है, इसीलिए अगर आपको वो इनविटेशन मिलेगा, फिर वो आपके शहर की अल्कोहलिज्म कमेटी पे चेयर करना हो, या आपको किसी हॉस्पिटल में अल्कोहलिज्म काउंसलर करके लिया गया हो, या आपको खुद को आपने रिहैब सेंटर खोला हो, या सोब्राइटी फार्म, या हाफवे होम, या क्लब हाउस, इस प्रकार की कोई सेवा आपने अपने आप के खर्चे से अपने आप से की हुई हो और ये आप प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो ये एए का मैसेज नहीं गिना जाएगा, ये प्रोफेशनल सर्विसेज करके ही गिनी जाएगी। और ये करने के लिए ना कि हम आपको अलाउ करते हैं, बल्कि हम एनकरेज भी करते हैं कि अगर आपको समाज को कुछ भी करने का, अगर कुछ सेवा देने का मौका मिलता है तो आपने जरूर करना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर रिसेंटली हमारे यहाँ पर बड़ा बवाल मचा हुआ था कि हमारे कॉन्फ्रेंस ने एक निर्णय ले लिया कि जो भी सदस्य किसी भी रिहैब सेंटर में काम करता हो या रिहैब सेंटर का ओनर हो, उसको हम लोग एए के सर्विसेज में सर्व करने नहीं देंगे। तो उसके पीछे यही जो फियर जो यहाँ पर बीएलडब्ल्यू बात करते हैं कि हमारे मन में हमेशा से ही एक डर लगा रहा है कि एए के नाम का ये पैसा बनाने वाले जो लोग हैं इनको रोकना चाहिए। ये हमारे मन में हमेशा से ही लगा हुआ है, एक डर रहा है। लेकिन बीएलडब्ल्यू कहता है कि हम उसमें से बाहर निकल चुके हैं। जिनको प्रोफेशनली ये काम करना है वो प्रोफेशनली वो करते रहे और एए में वो काम नहीं करे। तो एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट है वो। सो फॉर ए मेंबर्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म नाम का एक हमारा एए का गाइडलाइन है कि अगर आप अल्कोहलिज्म फील्ड में एम्प्लॉयड हो, यानी आपका सेंटर खुद का हो या आप काउंसलर करके काम करते हो या हॉस्पिटल में काम करते हो या किसी साइकेट्रिस्ट के पास काम करते हो जिसके वजह से आपको पैसा लेते हो, बेसिकली आप अल्कोहलिज्म की फील्ड में काम करने के लिए अगर आप पैसा लेते हो तो आपने आपका व्यवसाय जरूर आप करिए, लेकिन आपके व्यवसाय को ए में मत ले आइए। जब आप ए में आओगे तो ए मेंबर करके ही रहो, और जब भी आप व्यवसाय करोगे तो एक व्यावसायिक करके ही करो। वहां पर ए मत लेके जाओ और यहाँ पर व्यवसाय मत लेके आओ। ये दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट करो। तो इसके प्रति ये गाइडलाइंस है, बड़ी खूबसूरती से दी हुई है। जो लोगों को इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए जरूर ये गाइडलाइंस डाउनलोड करें। बिना मूल्य एक कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो a.org पे से, या तो जीएसओ इंडिया में से गाइडलाइंस की कॉपी मंगा सकते हो और उसमें भी आपको ये रेफरेंस मिलेगा। तो बीएलडब्ल्यू ने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है 1950s में। उसमें वो पूछते हैं कि सपोज आप शराबी हो और एक आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हो और आपके देखभाल करने के लिए एक नर्स आई हुई है, तो क्या आप प्रिफर करोगे कि वो ए मेंबर हो या नहीं हो? तो ऑब्वियसली आप प्रिफर करोगे कि वो ए मेंबर हो, क्योंकि उसको इस विषय की समझ होगी, उसको आपके प्रति प्यार होगा, सहानुभूति होगी और वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आपको मदद करेगी। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोगों में से बाहर जाके हम नर्सेस बनेंगे ही नहीं तो वो पीड़ित शराबी को ए वाली नर्स मिलेगी कैसे? अगर हम लोग बाहर जाके अलग अलग कमिटीज पे अलग अलग जगह पे सेवा देंगे ही नहीं तो भावी जो शराबी आने वाला है उनको जल्दी एए का मैसेज मिलेगा कैसे? अगर लोगों को जल्दी एए का मैसेज मिलना है
तो हमारे जो सदस्य है उन्होंने जाके अलग अलग स्तरों पर समाज के जो भी ऑप्शंस है, पेड या अनपेड या जो भी है, वॉलंटरी या इलेक्टेड, ये हर जगह पर हमारे सदस्यों ने अपनी अपनी जगह ले लेनी चाहिए। यही सही होगा आने वाले जनरेशन्स को जल्द से जल्द AA का मैसेज मिलने के लिए। हमारा जो दृष्टिकोण है ये काफी बड़ा दृष्टिकोण है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, हम कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं है कि हम लोग किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं कि ये रिहैब सेंटर को ज्यादा सदस्य गए या मेरे पास ज्यादा सदस्य आए, ये देखने के लिए हम किसी के साथ कॉम्पीट कर नहीं रहे हैं। हम एक सेवा है, हम एक उपलब्धि है, और जो भी चाहे जब भी चाहे बिना मूल्य हमारा लाभ ले सकता है। यही हमारा भाव होना चाहिए, और यही भाव ये सबको साथ में लेकर चलेगा। हमको किसी को रोकने की या बाहर रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप की तरफ देखकर हमारे को अपने आप को सुधारने की जरूरत है। बाकी दुनिया जैसी चलती है वैसी चलती रहे, हमको कोई ऐतराज नहीं है। ये इस ट्रेडिशन के पीछे का भाव है। तो मैं अपने आप को यही रोकना चाहूंगा। 10-12 मिनट बचे हुए, अगर कोई सवाल पूछने चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर सवाल ले सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो हम लोग ट्रेडिशन चेकलिस्ट के सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। दोस्तों, आप प्लीज अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं जिसको अगर कोई प्रश्न पूछना है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, आ रहा है। हाँ दोस्तों, राहुल शराबी किसी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हर ग्रुप का प्राथमिक उद्देश्य शराब से दूर रहना और दूसरे शराबी को मदद करने का है। तो ये जो ट्रेडिशन, इतनी 8वीं ट्रेडिशन 9वीं ट्रेडिशन है, तो मैंने देखा है में कि भाई अभी ग्रुप का प्राथमिक उद्देश्य है, और ये अल्कोहलिक एनोनिमस को जिंदा रखने के लिए ये सब चीज, ग्रुप का पैसा इंटर ग्रुप में जाता है, GSO में जाता है। तो ये सब चीजों में ही, और बहुत सारे ऐसे इंटर ग्रुप है जिसको जिंदा रखने के लिए हम कन्वेंशन ग्रुप का फंड दे के हम उसको जिंदा रखते हैं। तो इसमें जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, तो वो जो एकदम निचले स्तर के लोग हैं, जैसे अभी एक डिटॉक्स करके आया मैं, वहां पे एक ग्रुप ने पूरा वो डिटॉक्स करके 8 लोगों का सोब्राइटी अभी हो गया है। तो वो तरीका एकदम कीप इट सिंपल वाला तरीका काम कर रहा है। और हम ये जो कॉर्पोरेट वाला तरीका जो है, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, समझो कोई बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ डिसीजन लेने के लिए 1 साल लग जाता है। जबकि एक छोटी कंपनी रहती है, वहाँ डिसीजन लेने 2 मिनट में, 2 महीने में उसका डिसीजन पास हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा चर्चाएं नहीं होती है। तो मैंने देखा है जापान में भी ऐसा सिस्टम है कि ज्यादा मीटिंग से नहीं होती है। तो मेरा ऐसा बोलने का है कि भाई हम बातें ज्यादा करते हैं और मैसेज कम हो रहा है हमारा। स्ट्रेस मैसेज जिस हिसाब से होना चाहिए ग्रुपों में, या शराबी तक मैसेज जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। हम मीटिंगें ज्यादा कर रहे हैं। मेरा ये सवाल था, इसके ऊपर आप कुछ ऐसा आपका कोई अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं कि इसको कैसा हम अच्छे तरीके से कर सके, मैसेज को दूसरे शराबी तक ले जा सके। तो चलो, राहुल का ये जो सवाल है उसी को हम लोग एक केस स्टडी बनकर देखते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग 7वीं ट्रेडिशन सेल्फ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, और अभी हम लोग 8वीं ट्रेडिशन यानी स्पेशल वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि GSO न्यूयॉर्क का एनुअल बजट ये $10 मिलियन से ऊपर है। तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि सपोज हमारी जो वो जो क्या नेशनल हेल्थ जो रिपोर्ट है उसमें एस्टिमेट दिया है कि भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ शराबी एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है। अब अगर ये 5 करोड़ शराबियों तक AA का मैसेज पहुंचाना होगा तो क्या करना होगा? तो लेट अस से कि भारतवर्ष में सपोज 1 लाख डॉक्टर्स है, तो ये 1 लाख डॉक्टर्स को
एक ही जानकारी मिलनी होगी। अब ये 1 लाख डॉक्टर्स को जानकारी देगा कौन? हमारे ग्रुप तो अपनी मीटिंगें चलाने में ही व्यस्त है। वो ग्रुप की मीटिंग चलाने के लिए कोई 4 कोई 5 सदस्य है, ज्यादातर लोग मीटिंग में आ भी नहीं रहे हैं, तो ग्रुपों को कैसे चलानी, यही मुश्किल है हमारे सामने। तो वॉलंटियर्स हमको मिल नहीं रहे हैं, ग्रुप चलाने के लिए भी हमको तकलीफ हो रही है। तो ये 1 लाख डॉक्टरों तक पहुंचने का काम करेगा कौन? रिवाइवर ग्रुप नहीं कर सकता। ठाणे अंतर समूह में 10 ग्रुप है, उसमें से कोई एवरेज मीटिंग में 4 या 5 ग्रुप के ऊपर कोई आता नहीं आईजीआर। 4 पोजीशंस होती है, वो 4 पोजीशन में से एक आध दूसरी पोजीशन हमेशा खाली पड़ी रहती है, क्योंकि कोई सेवा देने को आता नहीं। ये हमारे सर्विस स्ट्रक्चर की अवस्था है। तो ये 1 लाख डॉक्टरों तक अगर पहुंचना होगा तो ये कार्य करेगा कौन? तो ये जो कार्य है ये स्पेशल वर्कर्स करते हैं। सपोज हमारे पास जीएसओ में एक आधा स्टाफ होता जिसका काम ही होता कि भारतवर्ष के सभी डॉक्टरों को हर महीने में एक एए का न्यूज़लेटर भेजना और एक आधा पैम्पलेट भेजना और मीटिंग लिस्ट भेजना। अभी समझ लो ये काम उसको वो 365 डेज ए ईयर वो जीएसओ में काम ही कर रहा है। तो रोजाना वो अगर 1000 कुरियर भी भेजता है, अलग अलग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास से अलग अलग लिस्ट लेता है, उनके एड्रेसेस इकट्ठा करता है कि आज बंबई के डॉक्टर को भेज दिया, फिर होते होते हफ्ते भर में पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को भेज दिया, फिर महीने भर में पूरे महाराष्ट्र गोवा ये पूरा कर दिया, फिर दूसरे महीने में गुजरात कर दिया, तीसरे महीने में कर्नाटका कर दिया। ऐसा करते करते 12 महीने में 12 राज्यों में गया। 24 महीने में पूरे देश भर के हर एक डॉक्टर के पास में हर महीने हमारे यहाँ से लिटरेचर जाने लगा। अभी ये चीज के लिए 2 चीज लगेगी। अगर दिन के हजारों लेटर्स जाने हैं तो भेजने के लिए वैसे टाइप का हमको ऑफिस लगेगा, पेड एम्प्लॉयज लगेंगे, हमारे पास रोजाना कुरियर लगेंगे, हमको लिटरेचर उतनी मात्रा में लगेगा, और रोजाना 10,000 पैम्पलेट्स अगर हमारे जा रहे हैं तो बड़ी मात्रा में हमको पैसा लगेगा। अब हमेशा पहले मुर्गी आएगी कि पहले बैदा, ये हमेशा से ही सिचुएशन रहता है। हमारा जीएसओ न्यूयॉर्क भी जब भी बन रहा था तो पहले मुर्गी या पहले बैदा? ऑब्वियसली पहले बैदा। पहले जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया, उससे 6000 इंक्वायरी आई, उसमें से फाउंडेशन ऑफिस बड़ा हुआ। फिर अलग अलग लिबर्टी मैगजीन आई, अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग रेडियो, अलग अलग टेलीविजन पे आर्टिकल्स आते गए, छपते गए, और फिर हमारी सेवाएं बड़ी 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 होते गई। अगर इसी प्रकार से हम लोग अगर सोचते हैं कि सपोज हम ये 1 लाख डॉक्टरों तक पहुंचना शुरू कर देते हैं और 10,000 रिहैब सेंटर्स को हर महीना हम लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं, तो इतनी ही सेवा करने के लिए हमको कितना पैसा लगेगा? तो समझ हर एक यहाँ पर एक 20 रुपए का कुरियर और एक 20 रुपए का पैम्पलेट या जो भी कंटेंट भेजना है वो, यानी 40 लाख रुपए का अपने पास अगर हर महीने का खर्चा आता है तो लगभग 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमको चाहिए। अगर हमको ये एक सिंपल सा सपना पूरा करना है तो हमारे पास कुरियर्स है, हमारे पास स्पेशल वर्कर्स है, हमारे पास प्रिंटर्स है, हमारे पास पैम्पलेट्स है, और ये अगर हमको ये एक ही सेवा हमको पूरी करनी है कि हर मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिर वो साइकेट्रिस्ट हो, कोई भी प्रकार का डॉक्टर हो, उसको हर महीना हम लोग कुछ ना कुछ भेजेंगे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जानकारी, तो हम लोग 5 करोड़ रुपए का सालाना खर्चे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे देखने को जाओ तो ये रकम बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी 50,000 मेंबर्स है, तो अगर ये 50,000 मेंबर्स ने 10 रुपए दिए तो 5 लाख हो गए, 100 रुपए दिए तो 50 लाख हो गए, और 1000 रुपए अगर सालाना दिए तो 5 करोड़ रुपए का बजट पूरा हो सकता है। तो 1000 रुपए सालाना, इसका मतलब 365 दिनों से मैं डिवाइड करता हूं तो लगभग 3 रुपए रोज के अगर हर मेंबर खर्चा करता है, और हमारे जीएसओ में अगर उस प्रकार की संयंत्रणा बनी हुई है कि वहां पर आदमी है, कुरियर सिस्टम्स है, उतनी बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग होके लिटरेचर अवेलेबल हो रहा है,
और कोई ना कोई ये पूरे राज्य के हर जगह से मेडिकल प्रोफेशनल्स के एड्रेसेस जमा कर रहा है और ये रेगुलरली पोस्टिंग हो रहा है, बड़े पैमाने पे ये काम चल रहा है, तो उसकी हमको निजी कॉस्ट सिर्फ 3 रुपए होगी। वो भी कब तक? शायद 1 साल। क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में जब हम लोग ये काम करेंगे तो 50,000 के अगले साल हम लोग 1 लाख हो गए होंगे, क्योंकि इतने सारे लोग ए में भेजेंगे, लाखों में आएंगे, क्योंकि हम लोग 5 करोड़ शराबियों की बात कर रहे हैं, तो लाखों में लोग ए में आएंगे, उनमें से 50,000 भी टिक गए तो हम लोग हर साल 50,000 के लाख हो सकते हैं और लाख के 2 लाख हो सकते हैं। हमारी मात्रा डबल हो सकती है हर साल। और अगर डबल हो गई मात्रा और वही काम चलते रहेगा तो 3 रुपए से हमारा पर पर्सन कॉस्ट आ गया 1.5 रुपए पे, और तीसरे साल में वो शायद आ जाएगी 75 पैसे पे। अगर उतना ही एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी हम लोग साल भर 3 साल लगातार करते हैं या 5 साल लगातार करते हैं तो हमारी पर पर्सन कॉस्ट आएगी 15 पैसे या 20 पैसे, और हर साल हमारे पास में लाखों की तादाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नए सदस्य आएंगे। अब ये इतना बड़ा एग्जीक्यूशन करना होगा तो ये किसी समूह के या किसी अंतर समूह के या किसी स्टेट कमेटी का बस का ये काम नहीं है, ये किसी वॉलंटियर कमेटी का काम नहीं है। ये काम करने के लिए डेडिकेटेड एम्प्लॉइज होने पड़ेंगे, उनको ढेर सारा बजट होना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन करने के लिए ट्रस्टीज की कमिटीज होनी पड़ेगी, और तब जाके ये इस प्रकार की सेवा इंप्लीमेंट की जा सकेगी। अगर ये सेवाओं से अपने पास हर साल 50,000 लाख मेंबर आने लगेंगे, हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर हम लोग अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग ऐसे ही स्टाफ मेंबर्स करते जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमें भी एक 10,000 स्क्वायर फुट की ऑफिस की और 50-70 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने लगेगी, और हमारा भी सालाना टर्नओवर जो है वो 40-50 करोड़ का हो जाएगा, और हर साल हमारे पास भी लाखों की तादाद में नए नए रिकवरीज आती रहेगी। तो ये स्केलिंग अप वाला जो गेम है ना, अगर मैं बैठा रहा अपने ग्रुप में जाके, आजकल कोई नया मेंबर आता नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया, हमारे साल में सिर्फ 2 ही रिकवरी हो गई फर्स्ट ईयर के बर्थडे की, अगर ये हम लोग बोल रहे तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि हमारे जीएसओ में अगर वो विजन ही नहीं है, अगर लार्ज स्केल सोब्राइटी का विजन हमारे ट्रस्टीज नहीं देखेंगे और हमारे डेलीगेट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे पास में स्पेशल वर्कर्स नहीं होंगे और 7वीं ट्रेडिशन का उनको साथ नहीं मिलेगा, तो हमें दोस्तों 12 स्टेप कॉल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमको वही 3-4 सदस्य लेके हम लोग 1-2 साल ग्रुप चलाएंगे और धीरे धीरे हमारे समूह बंद होने लगेंगे, क्योंकि नया कोई आ ही नहीं रहा है, और हम सोचेंगे ये हमारा फेल्यूर है। ये हमारा इंडिविजुअल या हमारे ग्रुप का फेल्यूर नहीं है, ये हमारे पूरे फेलोशिप का फेल्यूर रहेगा, क्योंकि हमने हमारी 7वीं और 8वीं ट्रेडिशन समझी नहीं है। ठीक है राहुल भाई? थैंक यू भूषण। राहुल, ये बहुत बड़ा गेम है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ बहुत बड़ा गेम है तो ये। बराबर ठीक है। बराबर बोला कुशन भाई ने। हाँ, ये समझ गया कि वो जो प्रोफेशनल ही, वो उसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है और डेलीगेटेड टीम नहीं है, और आपस आपस में वो सब हम मीटिंग खेल रहे हैं, वो सब बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया ये बात किया, एक अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का हमको। हाँ हाँ, वो ही मीटिंग खेल रहे हैं मीटिंग से नहीं चलेगा। अलग दृष्टिकोण। ठीक है, घर का मीटिंग नहीं चलेगा। अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये प्रोफेशनल दृष्टिकोण बहुत बढ़िया है, ये इस हिसाब से हम कर सकते हैं, बढ़िया है। और शायद कोई न्यू कमर्स ज्वाइन हुए हैं, कोई न्यू कमर्स है क्या हमारे बीच? इस मीटिंग में आज कोई पहली बार किसी ने ज्वाइन किया है तो आप सबका स्वागत करना चाहते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों मीटिंग का समय हो चुका है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे ट्रेडिशन 9 पे चर्चा करने के लिए, अगले शुक्रवार को रात को 9 बजे, 9 से 10:30 बजे के लिए। तो मैं मीटिंग क्लोज करता हूं। कृपया हम ट्रिनिटी प्रेयर लेते हैं इंग्लिश में, वी वर्जन पे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी माइक। गॉड God ग्रैंड अस द ट्रिनिटी,
Grant us That's serenity. the thing we cannot change. We To cannot change. change the things we can, and the Courage to wisdom change the things we can. to know the difference. And wisdom to know the difference. Keep coming back.